Tell me, what is the concept of fasting in Ayurveda? Fasting in Ayurveda is very beautifully explained. Actually, it is visioned for all types of reasons why disease occurs. It includes physical well-being, it covers psychological, and also a spiritual angle is there. Okay. So, in Ayurveda, there are two therapeutic modalities. First is Langhan, which means depletion, Okay. and other is Brahman, which means nourishment. So, depletion therapy means anything we consume, whether it is medicine, our lifestyle, diet, or Panchkarma therapies, which bring lightness in our body and soul. There are 10 types of Langan therapies, and among those 10 therapies, one is fasting, which we also called Upavas. Okay. And in Upavas, abstinence of food from any type of way we are consuming it. Ayurveda believes there are 4 ways in which we consume our food. First is by eating, by chewing. Second is by licking. Third is by drinking. And fourth is swallowing. So whenever there is abstinence of food from any form of intake, it is called fasting. Why are we doing fasting in Ayurveda? Like, why does Ayurveda actually ask you to fast? Because it seems like it's part of, this bigger theory of depleting or reduction. Can you go more over that? Yeah. So the thing is, Ayurveda believes that our body is made up of different kind of doshas. There are physical doshas, Vata, Pitta, Kapha, and there are some mental doshas, Mansik doshas, which we call Rajas and Tamas. Whenever there is vitiation in any kind of dosh, disease occurs. With fasting, there is a concept I can explain with an example. Whenever we try to lit a fire, and there is already ashes in the fire pit from beforehand. So if we try to lit a fire, the intensity of the fire is not good if there is ash on the coal or on the wood. Okay. So similarly happens in our body. Whenever there is vitiation of doshas in our body, specifically in our digestive tract, that is our amasya, when the digestive fire is not good, the intensity of digestive fire is not good Because there are things covering it. Yeah, the doshas are there. Okay. Doshas are there in our digestive tract. Therefore, those let the digestive fire to not be so good. Okay. So, because of vitiated doshas, digestive fire is not good. This digestive fire leads to impaired digestion, and impaired digestion leads to generation of metabolic toxins. Okay. That is called ama. And when this ama is generated in our body, it blocks the minute channels of our body. And because of those blocked channels, diseases occurs, those symptoms occurs. So whenever we are doing fasting, since there is no food in our gut, that digestive fire metabolizes the toxins. So the channels get opened and the disease symptoms get reduced. So this is a concept behind fasting. And fasting is mentioned in both ways. Like it is therapeutic also and it is preventive also. Okay. And also it covers 3 level of treatment, like physiological, psychological and spiritual angle. So there is a saying in Ayurveda, Upavasam Paramoshadam. Matlab upavas, matlab fasting is paramoshadi, the best treatment possible for both, like therapeutic purpose also and preventive purpose also. Fasting is best possible treatment which one should adopt whether he is ill or not, and it will cover all type of diseases, whether it is physiological, it is psychological or spiritual. So is that the reason that spiritual fast be aligned करे गए हैं आयुर्वेदा में कुछ? Is there any link between these spiritual fast like करवा चौथ या फिर नवरात्रि? Do they align with Ayurveda concepts? Yes. एक्चुअली जो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो इन्विजन ही इसीलिए हुआ था क्योंकि वो तीनों एंगल को कवर करता है. बिकॉज आयुर्वेदा बिलीव्स इन एवरीथिंग. आयुर्वेदा बिलीव्स कि ऐसी भी डिजीजेज हैं जो स्पिरिचुअल एंगल की वजह से होती हैं. आयुर्वेदा बिलीव्स कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी हैं. आयुर्वेदा बिलीव्स इन फिजिकल इलनेस ऑल्सो. तो फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तीनों को कवर करता है. ओके. थ्रू आवर मेटाबॉलिज्म, हमारी मेटाबॉलिक फायर को इनिशिएट करके वो हमारी फिजिकल इलनेस को क्योर करता है, हमारे मानसिक दोषों को बैलेंस करके वो मेंटल इलनेस को कवर करता है. और थर्ड थिंग इज स्पिरिचुअल एंगल. जो भी हमारे सनातन धर्म में ये इतने सारे फास्टिंग के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, ये बहुत ज्यादा अलाइन करते हैं आयुर्वेदा से. फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली फिजिकल. सेकेंड स्पिरिचुअल इसलिए होती है बिकॉज वी हैव अ मोटिव. जैसे जो हमारे फास्ट होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं. अगर गणेश चतुर्थी पर हो रहा है तो हम एक मेंटली हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि वी हैव टू प्रे फॉर लॉर्ड गणेशा. हमारी सोल बहुत प्योर हो जाती है उस टाइम पे. हम बहुत नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देते हैं. दैट वे इट हेल्प्स अस इन स्पिरिचुअल एंगल ऑल्सो. देयर आर सम डिजीज
जिनका कोई रीजन फाइंड आउट अभी तक नहीं हुआ है, उनको हम कंसिडर करते हैं स्पिरिचुअल डिजीजेस के अंडर। तो उनको क्योर करने के लिए फास्टिंग बहुत अच्छा काम करता है। Does Ayurveda recommend every person on this planet to fast? No, there are some contraindications. Okay. और सबसे पहली चीज जो फास्टिंग में ध्यान रखनी है, डूज एंड डोंट्स में जो आती है, सबसे पहली चीज वो ये कि एक्चुअली में फास्ट किसको करना है और किसको नहीं करना है। Not everyone is good for fasting. First thing, very old people should never fast. Oh, really? Children should not fast. Pregnant ladies should not fast. The one who is having very severe psychological illnesses, or we may call very severe anger issues, or psychologically who is not fit. Jealousy बहुत ज़्यादा है severe level पे. There are people, and this is very common in our day-to-day life. We are jealous. हम अपने work place पे होते हैं. We don't recognize it. But अगर बहुत extreme level पे बहुत जा रहा है वो, और आपका routine life इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो you should not fast. Oh wow. Yeah. Third thing, if you are suffering from any illness जिसमें आपको already बहुत hunger और thirst है, उसको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। So that would include somebody like diabetics? It depends on your physician. Okay. अगर आप डायबिटिक हो, आपका मेंटेन्ड है शुगर लेवल्स, आपका बॉडी का जो इलनेस है वो कंट्रोल लेवल पे चल रहा है, तो डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको फास्टिंग करना है नहीं। तो इट इज बेटर टू कंसल्ट अ फिजिशियन बिफोर हैंड, गेट योर नाड़ी चेक्ड, see what type of dosha is vitiated at that particular time, and then go for fasting. But what about, I come back to it because a lot of spiritual fasts, we're in festival season and a lot of spiritual fasts come. Some people fast on Karwa Chauth, some people fast the entire 9 days of Navratri, and उसमें तो काफी लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं without water. Who do you think is at risk during these 9 days? Actually, this concept is not good. In Hindu culture, we do fast, but we do wrong things so much. जैसे हम गलत क्या करते हैं, पहली चीज जैसे आपने निर्जला फास्ट का बोला, बिकॉज एक स्पिरिचुअल एंगल है, तो पीपल वांट कि मेरे को ये करना है विदाउट थिंकिंग कि मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। मे बी मेंटली वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मैंने एक दिन का फास्ट रखा, बट फिजिकली दे आर नॉट दैट गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, निर्जला फास्ट रखने का कॉन्सेप्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। Everyone is not prepared for that. जैसे कफा टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए फिर भी एक दिन के लिए चलता है कि निर्जला फास्टिंग उन्होंने रखा, बट वाता और पित्ता टाइप के लोगों के लिए निर्जला फास्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड। एंड ऑल्सो जैसे नवरात्रि में आपने बोला कि लॉन्ग फास्टिंग लोग रखते हैं, मल्टीपल डेज कंटिन्यूस, वो भी ठीक नहीं है। ऑल्सो इन दैट एक चीज और वो लोग गलत करते हैं, वो फास्टिंग रखते हैं लाइक मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे फास्ट, पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पियेंगे, एंड इमीडिएटली इवनिंग में वो इतना हैवी मील ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फ्राइड। कुट्टू की पूड़ी बहुत फेमस है कि इवनिंग में लेते हैं लोग, दैट इज नॉट गुड। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फास्टिंग इज कि हमारा जो डाइजेस्टिव फायर था वो ठीक नहीं था अर्लियर, अभी हमें उसको धीरे धीरे बिल्डअप करना है, हमें थोड़ा सा फूड देना है ताकि लिट हो फायर। व्हेन इट इज कम्प्लीटली लिट, फिर एक हमें बैलेंस डाइट देना है सो दैट वो मेंटेन रहे। ये कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का। अगर ऐसे आप फास्टिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। So what is the ideal thing that one should break their fast with? आइडियल थिंग इज सावक का चावल इज गुड, इट इज गुड, बट कैसे आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, आप ऐसा बिल्कुल उसको पुलाव जैसा बहुत हैवी बना रहे हो, दैट इज नॉट गुड। बट अगर उसमें खूब सारा वाटर ऐड करके ग्रोल जैसा बना रहे हो, फर्स्ट थिंग इफ यू आर कंज्यूमिंग व्हेन यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट, इट इज बेस्ट। आफ्टर दैट यू कैन इंट्रोड्यूस अदर थिंग्स इन योर मील, थोड़ा सा गैप लेके फिर आपने थोड़ा सा कुछ मील ले लिया, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमीडिएटली हैवी मील नहीं लेना है, धीरे धीरे करके री इंट्रोड्यूस करना है मील्स को अपने डाइट में। तो सामक का चावल का ग्रोल बना के आप ले सकते हैं। सामक का चावल लेना है थोड़ी क्वांटिटी में, उसमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज्यादा रखना है, नॉर्मली जितना हम राइस कुक करते हुए रखते हैं, तो थोड़ा फ्लूइड कंसिस्टेंसी में जब वो रहता है उसको कंज्यूम करना इज बेस्ट। अगर वो फास्ट रख रहे हैं, मान लीजिए कि उनकी फैमिली में कुछ ट्रेडिशन है, दे आर रिक्वायर्ड टू कीप सच फास्ट, व्हाट आर सम साइंस दैट दे विल नोटिस दैट फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर देम? सो देयर आर वेरी स्पेसिफिक साइंस मेंशन्ड इन आयुर्वेदा वेरी क्लियरली for how you would know whether your fasting is adequate, how would you know whether it is inadequate, and how you would know whether it is excess. So there are 3 types. सबसे पहले हम excess fasting की बात करते हैं, जो वाता टाइप के लोगों में जनरली दिखता है। एक्सेस फास्टिंग आपको पता चलेगी तब जब आप बहुत वीक फील करोगे, आपने फास्ट तो रखा है लेकिन आपको लग रहा है मेरे को दिन में भी 2 घंटे 4 घंटे सोना है, रात में भी नींद आएगी, बहुत लो फील हो रहा है, काम पे भी नहीं जाने का मन हो रहा है, दैट फास्टिंग इज नॉट गुड। इसका मतलब आप एक्सेस कर रहे हो, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, सो दैट लाइवलीनेस इज नॉट देयर। यस एग्जैक्टली, फ्रेशनेस इज नॉट देयर। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि आपसे कुछ छीनना है, इसलिए नहीं है कि मैंने तो कुछ मतलब अपनी बॉडी से अलग कर दिया है, मेरे को सब कुछ छोड़ना है, मैंने त्याग कर दिया है। फास्टिंग त्याग से रिलेटेड नहीं है। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट फिजिकली डिफरेंट है, स्पिरिचुअली डिफरेंट है। तो दूसरी चीज, अगर आपको बहुत एक्सेस थर्स्ट लग रहा है, नॉर्मल डेज से बहुत ज्यादा आपको प्यास लग रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आप एक्सेस स्वेट कर रहे हो,
वो भी बहुत गलत है। आप ड्राई कॉफ बहुत ज्यादा कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो बैड, मतलब आपका एक्सेस फास्टिंग हो रहा है। तो ये मेजर साइंस है जो हम एक्सेस फास्टिंग में देखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इमीडिएटली ब्रेक योर फास्ट एंड टेक रेस्ट। और अगर आप इनएडिक्वेट फास्टिंग कर रहे हो कि आपने फास्टिंग तो रखा है लेकिन इतना हैवी बीच में कुछ कुछ चल रहा है खाने का, तो उसका पता चलता है कफिंग होगी बट देयर विल एक्सेस सलाइवेशन, बहुत सलाइवा बनेगा, लेथार्जी फील होगा, मतलब लो फील नहीं होगा लेकिन लेथार्जी, वैसा वाला कॉन्सेप्ट अगर है तो मतलब आप इनएडिक्वेट फास्टिंग कर रहे हो, आपको जरूरत है कि थोड़ा सा फास्ट करो, हाँ, मतलब खाना बंद करो, ले बैक थोड़ा करो थोड़ा थोड़ा इजी, गो इजी ऑन योर बॉडी। यस ओके। एंड इफ यू आर डूइंग फास्टिंग इन अ प्रॉपर वे, देयर आर सम सिम्टम्स लाइक आपको फ्रेशनेस फील होगी इन योर माउथ, your breath will be very good, your body will feel light, your mind will also feel light। तो इनिशियली हमने अपना डे ही इनिशिएट किया है बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ, तो पूरा दिन हमारा जो माइंड है वो थोड़ा काम रहता है, तो इस लेवल पे जाके वो काम करता है फास्ट। तो आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपका विजन, आपकी हियरिंग थोड़ी सी इंप्रूव होती है, बहुत ज्यादा शायद ध्यान नहीं देते हम लोग लेकिन इंप्रूव करती है। होल डे बहुत फ्रेश फील होगा, एंथुजियाज्म रहेगा आपकी बॉडी में कि हाँ मेरे को फास्ट रखना है, मेरे को काम करना है। तो ये चीजें बताती हैं कि हाँ आप एडुकेट फॉर्म में अपना फास्ट रख पा रहे हैं।